Now, very good afternoon to everyone. Now, this is our eighth lecture, and in this lecture, we are going to see the remaining part of the topic yesterday we have done. And now you have an idea what we have done yesterday. You have an idea what we have done yesterday. Use the chat box for everything. You chat. Use the chat box. Yesterday, what we have done. Kingdom Monera we have done yesterday, and its notes already there in your classroom. Now you see in this classroom, I will show you that also right now. Now this is the classroom. In this classroom, I already posted. Now you just see that already posted. Yesterday's both the lectures I posted over there. If anybody missed that lecture, you can see. And the notes of Kingdom Monera, that is part 1. And Protista, today what I'm going to take, it's not also already posted there in the classroom, that is part 2. So please download the notes from here and you study from here. Okay, so please download this and then you can study the notes time to time. So this is about the classroom part. So time to time, everything is there in the Google Classroom. So please go through that. Okay, I'm stopping that share, and after that I come to the next one, the notes part. Now you see this is the notes. This is the notes which I posted last today, and we were going through this topic yesterday. I think all of you have seen these notes. Have you seen these notes there in the classroom? Students, please respond quickly. You have seen these notes in the classroom? Yes or no? If any student over here who is not a member in the classroom, please send your email in my WhatsApp number or in my personal WhatsApp number. You send your email ID. I will give you the link and you can join there. Otherwise, if you know the code, the classroom is having a code. If you know that code, what you can do there, you can go to the Google Classroom. Already you are a member of Google Classrooms. You go there. There you can see there is a plus sign. Click on plus. So when you click on plus, you will get two options there. One, create classroom. Second, join classroom. As a student, you can join the classroom. Click on join. When you click on join, you will be asked for the code. You will be asked for the code. And if you give the code, join into the classroom. Okay. So that way you can join into the classroom. Every member should join in the classroom, because in the classroom, notes, videos, everything will be provided. All informations are there in the Google Classroom. So no material will be posted in WhatsApp, because in WhatsApp the messages are coming and putting above the previous messages, so you can't see the materials. So in the Google Classroom, everything will be there. Then another thing is that in the Google Classroom, I have given the notes. These notes, if you want, you can write down. I won't compel you to write down the notes. What I say, you download that notes, study those notes, read your textbook. Now today I'm going to give you some questions. When you get the questions, you can solve the questions there in the notebook. And another thing is that whenever our lecture is going on, please write down the main points in very short form. Okay. So what I repeat, because I got a message to explain once again. So whatever notes are posted there in the classroom, it is there in the PDF format. You can download that PDF into your mobile or your PC, wherever. You can download it. You can study that. You can read your textbook. You can study the notes. But I'm planning to give you some questions also. So whenever you get questions, you can solve all these questions, and these questions you should write there in your notebook. मैंने आपको जो नोट्स दिया है वो नोट्स टेक्स्ट बुक में कॉपी करने का नहीं है. आप नर्सरी का स्टूडेंट्स नहीं है ऐसा कॉपी करके प्रैक्टिस करने के लिए. सो वो कॉपी नहीं करना. जब मैं क्वेश्चंस देंगे आंसर फाइंड आउट करने के लिए, तभी आंसर फाइंड आउट करके आपका नोटबुक में लिखना. दूसरा, इधर जब लेक्चर चल रहे, when the lecture is going on, you can write down some points. ये points आपको आपका नोटबुक में लिख सकता है एज ए लेक्चर नोट.
सो ये 2 एक्टिविटी आपको करना है। आपका सामने आपको टेक्स्ट बुक रख सकता है, टेक्स्ट बुक में आपको लिख सकता है पॉइंट्स, टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स मार्क कर सकता है, नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट किया तो उसमें आपको मार्क कर सकता है। ये सब फैसिलिटीज आपको दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से वो यूज करना। ओके, इतना है मेरे को इसके बारे में बोलने के लिए। अभी मैं ये स्क्रीन शेयर, अभी देखिए ये नोट्स, ये कल का लेक्चर का है, ये आज का लेक्चर का है, ये दोनों मैंने क्लासरूम में पोस्ट किया है। ये नोट्स में और एक बार वो रिमूव करके और एक बार मैं पोस्ट करेगा, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने ऐड किया है। रेड कलर में वही आप इधर देख रहे हैं, ये रेड पॉइंट्स रेड कलर में जो डाल दिया उसमें मिलने के लिए आपके लिए वो नोट्स में रिमूव करके और एक बार पोस्ट करने वाला है कल का शाम को जो डाला हुआ जो नोट्स। ओके, सो मैं ये स्क्रीनशॉट बंद कर रहे, अभी मैं डायरेक्टली जा रहे अपना लेक्चर में। हमने कल क्या किया उधर से हमको आगे जाना है। एक सेकंड है। Okay, friends, now I think that all of you are ready for the class. Are you ready for the session? Ready for the session? Are you listening me properly? My voice is clear. My voice is clear. Now all of you are ready. Even I repeat that some students who are not written their GR number, please write your GR number. Otherwise, you will not get your attendance. GR number अगर मालूम नहीं तो कोई इधर I think आज सादिया है क्या? Yeah, she's there. So what I do there, and I will make her co-host. Sadia will be co-host and she can help. Sadia, you are listening now. So now you are the co-host. और किसी को GR नंबर है मालूम नहीं, आपको देख सकते हो तो देख लीजिए। ओके, पेज नंबर आज का टॉपिक का 11 पेज नंबर 11 11। Okay, now I'm going to start the topic because no time. Now, yesterday where we stopped. Yesterday we stopped over here. That means yesterday we have seen that all the protista members are unicellular and eukaryotic. You remember what is the meaning of eukaryotic? How will you identify the eukaryotic one quickly? Always you please use the chat box only for a communication purpose. Okay, please use the chat box. Okay, so eukaryotes means they are having a well defined nucleus. मैंने आपको कल बताया था ये well defined nucleus का मीनिंग क्या। well defined nucleus का मीनिंग यही है that nucleus is having a nuclear envelope. So similarly other well organized membrane bound structures also there. Eukaryotic is the advanced one. और prokaryotes जब बोला है that we can say that is not advanced one, that is a primitive one. Okay, prokaryotes we can say that is primitive and eukaryotes are advanced. So all protista members are eukaryotes. Not only protista, even आने वाला kingdom भी eukaryotes है। आने वाला कौन सा किंगडम है बताइए जल्दी क्विकली बोलिए, चैट बॉक्स में लिखो फर्स्ट लेटर। अभी दो कुछ किंगडम बाकी है, कितना किंगडम बाकी है, कौन सा किंगडम है? Next kingdoms. Some people are writing P, yes, plant A. I understood plant A, Animalia, yeah, good. Or one more. Not fungi. Okay, so 3 more kingdoms are there. That is Anevala, plant A, Animalia, and kingdom fungi. और ये सभी kingdoms, not only protista, ये बाकी जो 3 kingdoms है, वो भी coming under eukaryotes. लेकिन क्या डिफरेंस है फिर वो 3 किंगडम और ये प्रोटिस्टा? मेन डिफरेंस, प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स होता है सभी मेंबर्स आर यूनिसेलुलर। ऑल द मेंबर्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर किंगडम, वी कैन से दे आर यूनिसेलुलर। लेकिन आने वाला जो 3 किंगडम्स है, आपने जो लिखा हुआ जो फंगे या प्लांटे या एनिमेलिया, ये तीनों किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर नॉट यूनिसेलुलर, वो तो मल्टीसेलुलर है। सो ये आप ध्यान में रखना। और बाद में कल मैंने आपको बताया था ये प्रोटिस्टा में कुछ डिविजन्स होता है।
ओवरऑल 5 डिविजन होता है। आपका टेक्स्ट बुक देखो तो आपको टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा, उधर 11 नंबर पेज नंबर सेकंड कॉलम में लिखा है ABCDE करके 5 लेटर्स लिखा है। ये 5 लेटर्स में आपको यहाँ बोलने को जा रहे हैं अभी। ओके, प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। दैट इज ग्रुप नंबर 1 आपका टेक्स्ट बुक में लिखा है प्लांट लाइक। प्लांट लाइक क्या है वो? क्राइसोफिल्स। और उसके बाद लिखा है प्रोटोजोअन्स, एनिमल लाइक। नंबर 2 एनिमल लाइक। नंबर 3 डायनोफ्लैजेलेट्स। नंबर 4 स्लाइम मोल्ड। एंड नंबर 5 यूग्लिनॉइड्स। ये है आपका जो 5 सब डिविजन प्रोटिस्टा का अंदर जो है। इतना हमने कल बात किया था। इधर से हमको आगे जाना है नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट ग्रुप आपको स्टडी करना है। Now we are going to study about the first one. The first one we can see that the first one, look at them. That is Kingdom Protista में first division क्या है? Chrysophytes. So आपका टेक्स्ट बुक में देखो तो एक क्राइसोफाइट्स करके उधर हेडिंग नहीं दिया, वहां क्या हेडिंग दिया है? द हेडिंग इज दैट प्लांट लाइक प्रोटोप्लास्ट। मतलब ये जो सॉरी प्रोटिस्टा, तो ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप है दैट इज लुकिंग लाइक प्लांट्स। वन सेकेंड। Okay, I'm sorry. Uh, now, so this is plan like. Why it is written plan like? Because I told you earlier that earlier all these organisms were there under two kingdoms, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. ये जो किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया अभी डिवाइड करके 5 कर दिया है। इसका मतलब पहले का जो एनिमल किंगडम में जो था कुछ प्लान कुछ ऑर्गेनिजम्स इधर है अभी, पहले का प्लांट किंगडम में जो जो था वो भी इधर है। इसलिए आपको बोल रहे प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लेस किया है उसमें प्लांट का जैसा जो दिखता है, प्लांट्स को मतलब पहले का प्लांट किंगडम में जो था they were looking like plants, they are having characters of plants, तो उसको बोलता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। उसमें पहला वाला है क्राइसोफाइट्स, उसमें पहला वाला को क्या बोलता है? क्राइसोफाइट्स। अभी ये क्राइसोफाइट्स और ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा नॉर्मली कहाँ रहता है? वो रहता है अभी देखिए फ्रेश वाटर। ओके, earlier the classification was two kingdom। पहले सबसे पहले टू किंगडम प्लांटे एनिमेलिया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, आपका जगह पे मैं जब बैठा, मतलब आप 11वीं 12वीं अभी अभी 11वीं क्लास में बैठा है, मैं भी जब 11वीं में था, दैट इज इन द ईयर 1983, तभी मैंने क्या स्टडी किया? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन कर दिया, 3 ग्रुप का, प्लांटे एनिमेलिया एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का ऐसा एक 3 डिविजन आता था। माइक्रोब्स भी पूरा माइक्रोब्स को सेपरेट करके माइक्रोब्स करके एक ग्रुप बना दिया था। लेकिन अभी विटाकर ने क्या किया? ये सबको रीअरेंज करके रीशफलिंग करके 5 किंगडम बना दिया। सो आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले 2 किंगडम ही था, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ इट इज 5 किंगडम्स। ओके, सो ये जो क्राइसोफाइट्स है प्लांट्स किंगडम में था, पहले का प्लांट किंगडम में था, उस दर था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कहाँ रहता है? अभी अपना टॉपिक में रहा है, कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस का आंसर भी साथ में बोल रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आ रहे वो मेरे को आता है, बाकी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। सो मैं क्वेश्चन देके तुरंत उसका आंसर देता है। नाउ विटाकर वो तो एक्सेप्टेड है। सी फॉर एवरीथिंग देयर विल बी मेरिट एंड डीमेरिट। अभी विटाकर सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेगा तो भी डीमेरिट्स है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम लोग हमारा बेसिक नॉलेज अभी विटाकर का ऊपर है। हम स्टडी कर रहे हैं विटाकर सिस्टम। सो विटाकर सिस्टम स्टडी करें तो उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स ज्यादा करके डीमेरिट्स है, वही हम देखेंगे लास्ट में। सो हम लास्ट में देखेंगे वो है उधर। लेकिन ये ध्यान में रखना, कुछ भी हो मेरिट्स भी है डीमेरिट्स भी। अभी ऑनलाइन सिस्टम, अभी आप ऑनलाइन क्लास में बैठा है, आपका ऑफलाइन छोड़ के आप ऑनलाइन में बैठा, मेरिट्स है डीमेरिट्स है। और मेरिट्स क्या है? आप घर पे बैठा है, आपको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है,
आप सिस्टम ऑन करके रखे सो रहे या क्या कर रहे हैं हम किसी को मालूम नहीं है। ओके, ऑफलाइन है तो आपको ऐसा करने को नहीं होगा, बराबर। सो एट द सेम टाइम इधर का डिसएडवांटेज क्या है ऑनलाइन का, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप खाली चैट बॉक्स से होता है। ओके, मतलब टीचर से आपको जो मतलब आपका जो गुरु शिष्य जो रिलेशन है, गुरु और स्टूडेंट जो रिलेशन है, वो रिलेशन अभी क्या हो गया, खाली एक मीडियम में हो गया। ओके, एडवांटेज भी है, सब फॉर एवरीथिंग देयर इज एन एडवांटेज एंड देयर इज अ डिसएडवांटेज। For Vitacle system also there is a disadvantage. Okay, so I hope that you understood that point. Now let me go ahead. So ये कहाँ रहता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये पार्ट, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, इसलिए जो आई मीन इंपॉर्टेंस देख के बात करना वो मैं इंपॉर्टेंस में बात करूंगा, ज्यादा बात करूंगा। ओके, कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरमेंट्स। मतलब फ्रेश वाटर बोलोगे तो आपका जो रिवर लेक पॉन्ड वगैरह आजू बाजू में। आई रिपीट, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट योर जीआर नंबर, क्योंकि मेरे को एक मैसेज अभी आ गया, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट रिटर्न देयर जीआर नंबर। आप प्लीज देखिए, आपका जीआर नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज फार एज बायोलॉजी टाइम अटेंडेंस इज कंसर्न। ओके, बायोलॉजी का जो अटेंडेंस में आपको जीआर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको जीआर नंबर दिया है। ओके, प्लीज राइट योर जीआर नंबर। ओके, सो फ्रेश वाटर एंड मरीन, मतलब फ्रेश वाटर बोलोगे तो आपका रिवर लेक पॉन्ड वेल, आपका आजू बाजू में सबसे तो बोल सकता है पीने के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्रेश वाटर बोलता है। ओके, और मरीन वाटर बोलोगे तो ओशन, जी में जो सॉल्टी वाटर है, ये सॉल्टी वाटर में भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है। सो फ्रेश वाटर एंड मरीन कहाँ रहता है, हैबिटेट पूछेगा तो फ्रेश वाटर एंड मरीन। दूसरा, ये तो यूनिसेल्युलर है, मैंने बोला यूनिसेलुलर बोला तो एकदम छोटा छोटा है, आपका नेकेड आंखों से आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको आपका नेकेड आई को आंखों से आपको देखने को मिलेगा एक यूनिसेल्युलर। कौन सा यूनिसेल्युलर है वो, मतलब सिंगल सेल, नॉर्मल केस में एक सेल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल सेल आपको। इधर प्लीज डोंट राइट एनी जीआर नंबर, मैं कंसिडर नहीं कर रही। ओके, जीआर नंबर आप लिखो आपका नेम में। ओके, सो ये यूनिसेल, एक ही सेल आपको देखने को मिलेगा, इवन तो इट इज अ यूनिसेल। कौन सा सेल है मालूम है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है इधर, लार्जेस्ट सेल किसी को बोल सकता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, चैट बॉक्स में लिख सकता है, फर्स्ट लेटर कम से कम, द लार्जेस्ट सेल विच यू कैन सी विथ योर नेकेड आई। नो आइडिया, ओके, नहीं, समथिंग एन योर रिटन, नो। सो द लार्जेस्ट सेल इज द एग। अभी एग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच एग आप देखने को, आपको देखने को मिला वो सिंगल सेल है। अभी दुकान से ये जो हैन का जो एग मिलता है दैट इज अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल है, आपको सेल देखने को मिलता है। ओके, सो सिमिलरली इन आवर बॉडी आल्सो सो मेनी सेल्स आर देयर बट यू कैन नॉट सी ए सिंगल सेल। सो मेरा कहने का मतलब ये जो प्रोटिस्टा मेंबर्स है वो छोटा छोटा सेल्स है, एक ही सेलुलर यूनिसेल्युलर है, लेकिन आपको देखना है तो क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप उसको देखने को आपको मिलेगा नहीं, यू कैन नॉट सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप। सो इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। एंड पानी में ज्यादा करके पानी में फ्लोट होता है, वो पानी में नीचे नहीं जाएगा, ये पानी में फ्लोट करके बैठा है। और मैंने बोला है ये प्लान लाइक है, प्लान लाइक बोलेगा तो प्लांट्स का टिपिकल कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट, व्हाट इज द टिपिकल कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट, अब लिखो ना चैट बॉक्स में, टिपिकल कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट। मेरा स्लाइड अब, या वेरी गुड बालकृष्ण has given me the answer, photosynthesis। सो ग्रीन मीन प्लांट्स बोलेगा तो अपना मन में ये आता है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे आर फोटोसिंथेटिक। सो ये जो प्रोटिस्टा मेंबर्स प्लांट्स का जैसा बोलेगा तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो वी कैन से दे आर फोटोसिंथेटिक। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, यू आर फॉलोइंग मी क्लियरली। ओके, एंड ये जो पर्टिकुलर ग्रुप में there are two types of individuals, two types of organisms, one is called diatoms and second called golden algae। अभी आप देखेंगे तो ये जो पावर पॉइंट का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये बैकग्राउंड में आप क्या देख रहे, तो बैकग्राउंड थोड़ा क्लोजली वॉच कर दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा
ये जो बैकग्राउंड में आप जो देख रहे वो नथिंग एल्स, दे आर क्राइसोफाइट्स ओनली। मैं आपको लास्ट पिक्चर में प्रोटिस्टा का फर्स्ट स्लाइड में आपको मैंने अमीबा दिखाया था। जैसा आप इधर देख रहे डाइटम्स एंड गोल्डन आल्गे का दूसरा नाम है डेस्मिक्स। ये आपका टेक्स्ट बुक में शायद नोटबुक में मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहे आपका नोटबुक में या टेक्स्ट बुक का साइड में लिख के रखो, आपको ध्यान में आएगा। ओके, सो इट इंक्लूड्स डाइटम्स एंड गोल्डन आल्गे या डेस्मिक्स। अभी हमको इसका डिटेल स्टडी में जाना है। पहला वाला हमको देखना है डाइटम्स। ये डाइटम्स के बारे में बोला तो अभी देखिए इधर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर पूरा डाइटम्स है। ये डाइटम्स आप देखेंगे ना, आपको मालूम है डाइटम्स को कवर करके एक स्पेशलाइज्ड सेल वॉल है, दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिका। दैट मींस इट इज सिलिशियस सेल वॉल से बनाया हुआ एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या मालूम है इसको? दो, अभी आपको मालूम है आपका सॉप का जो साबुन का जो बॉक्स है ना, लिड वाला बॉक्स, नीचे सॉप रखने के लिए बॉक्स है, ऊपर उसको कवर करने के लिए बॉक्स है। और उसमें से ऐसा रखेगा तो क्या होता है, दोनों दोनों क्या होता है, फ्यूज में जॉइंट होता है, मतलब बॉक्स फिट करके लॉक करके उधर बैठेंगे जैसा है। सो इन डाइटम्स यू कैन सी दैट देयर आर टू ओवरलैपिंग शेल्स, टू ओवरलैपिंग शेल। अभी साबुन का जो बॉक्स है उसका नीचे का एक शेल है, ऊपर का एक शेल है, ये दोनों ऐसा करेगा तो दे आर गोइंग टू फिट ओवर देयर। सेम मैनर इन डाइटम ऑल्सो you can see that there are two shells. One second, 1 second. Okay, so you can see that there are two shells over there, one above the other, वो फिट हो जाएंगे। लेकिन वो शेल कौन सा मटेरियल से बनाया हुआ है, क्या लिखा है उधर? सिलिशियस मटेरियल्स लिखा है। ओके, सिलिशियस मटेरियल्स लिखा हो सकता है फॉसिल्स में क्या फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन ये जो सिलिशियस सेल वॉल है, ये सेल वॉल एक पर्टिकुलर नेचर का है। व्हाट विल हैपन, अभी आपको मालूम है स्नेक को एक कवर होता है, स्किन होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद क्या करेगा, ये स्किन निकल जाता है ना, वो निकाल के दूसरा स्किन आएंगे। जैसा in this also we can see that the diatoms are depositing this siliceous cell wall in the habitat where it is। ज्यादा करके ओशन में होता है, ये ओशन में क्या करेगा, ये इसको उधर ही डिपोजिट करेंगे। ये जो डाइटम्स का जो शेल है उधर ही डिपोजिट करके वो बहुत सालों के बाद क्या होगा, ये पूरा एक अर्थ का जैसा हो जाएगा। ये अर्थ को बोलता है डाइटोमेशियस अर्थ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ क्या बोलता है? सो व्हाट डू यू कॉल दिस अर्थ? दिस इज कॉल्ड एज डाइटोमेशियस अर्थ। अभी ये डाइटोमेशियस अर्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जगह पे यूज करता है। कहाँ यूज करता है? वन, फॉर मेकिंग पेंट। अभी आपको मालूम है एशियन पेंट वगैरह वगैरह डिफरेंट पेंट कंपनीज आपको मालूम है। ये पेंट कंपनीज में पेंट का काम के लिए, मतलब पेंट में ऐड करने के लिए दिस डाइटोमेशियस अर्थ यूज कर रहे हैं। ओके, सो पेंटिंग पर्पस, पॉलिशिंग पर्पस, फिल्ट्रेशन पर्पस, ये सब काम के लिए ये यूज कर सकता है। अभी इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू गिव यू द आंसर। ओके, okay, we can. That is why we are learning all these things, right? Now, another important question I want to ask. You know water filter? वाटर फिल्टर आप कभी भी देखा है? वाटर फिल्टर का अंदर एक व्हाइट पर्टिकुलर सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, वो पानी फिल्टर कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन दैट इन अ वाटर फिल्टर? यानी उसको बोलता है फिल्टर रोड बोलता है, फिल्टर रोड। यस, दैट फिल्टर रोड इज मेड अप ऑफ दिस नाइट्रोमेशियस अर्थ। दैट फिल्टर रोड इज टोक का जैसा एक सिस्टम, एक रोड है। वो पानी में रखेंगे, पानी उसमें से जाएगा, वो फिल्टर करके जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड diatomaceous earth. So that filter is made up of diatomaceous earth. I hope that you understood this point. Okay, diatomaceous earth क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने दोनों आपको बताया अच्छी तरफ से। Now one more thing I want to say, where these diatoms are seen, there in the ocean. And this is plants like, that means they perform photosynthesis. That means in the ocean
you can see that these diatoms are seen in large number. The diatoms are seen in जगह पे वॉइस का इश्यू है क्या मेरा? Everybody facing the problem of voice? Because I'm getting a message that my voice is not clearly coming there. Suraj Vishwakarma, everybody is okay? Clear, na? Okay. So Suraj Vishwakarma, you are in your system, your speaker may be off. That may be the reason why you are not getting sound. Okay, please on that. Sadia, if you can help him, you please help him. Okay. So you can see that these diatoms, they are seen in the ocean and they are plants like they meet. That means ये आपको ध्यान में रखना. Ocean में सबसे most important producer कौन है करके पूछेगा तो diatoms है. So diatoms are the chief producers there in the ocean. Producer मतलब क्या है? सब लोगों के लिए खाना बनाना. Plants का काम क्या? Plants are the producers. Universe में plants को हम क्या बुलाता है? क्या बुलाता है plants को? Green plants को क्या बुलाता है? What do you call green plants in the universe? Producer. Same manner in the ocean, who is the main producer? Diatoms. You got the point clearly, friends? You got it clearly? Okay, now I'm going to the next slide. The next slide, now look at. What is the color of this slide? ये slide का color क्या है? Reddish. मेरा को एक क्वेश्चन है, डायटम्स प्रेजेंट बिटवीन दिस डायटम्स. बिटवीन क्या है? वो एक का ऊपर एक का ऐसा बैठा है, वो उनका शेल ऐसा है. ओके, सो ये जो स्लाइड आपको बोलेंगे सेकंड कैरेक्टर और सेकंड टाइप. कलर क्या है? रेड. देखिए क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स. आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 में आपका टेक्स्ट बुक में जो सीरीज सीक्वेंस दिया है सीक्वेंस सी, कुछ रीजन से ये सीक्वेंस चेंज है, आपको बाद में मालूम पड़ेगा क्यों. Okay, so now the question is that, now the second point is that dinoflagellates. What is the second division of Protista? Dinoflagellates. पहला वाला कौन सा था? पहला वाला chrysophytes. पहला first one chrysophytes and second one is that dinoflagellates. ये dinoflagellates also, if you look at, we can say that they are having the character of plants. What is the character of plants over here? The presence of pigments. If you look at over here, you can see that they have certain pigments. Almost all plant pigments you can see over here. Okay, कौन सा color में, इसलिए हम बोलता है they are photosynthetic pigments है, तो they can prepare their own food. Okay, so that is why we call them as photosynthetic. अभी dinoflagellates उनका habitat किधर है? habitat बोलेगा तो dwelling place, कहाँ रहता है? हैबिटेट मतलब क्या है? रहता है कहाँ रहता है ये डायनोफ्लैजिलेट्स? अपना रिवर में नहीं है, पोंड में नहीं है. दिस आर मोस्ट सीन इन ओशन. दिस इज आल्सो डायटम्स का जैसा ओशन है, मरीन एंड फोटोसिंथेटिक. मैंने आपको बोला प्लांट्स का जैसा दे कैन प्रिपेयर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स. व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंट्स दे हैव? दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द पिगमेंट्स. प्लांट्स का पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में बेसिकली 4 पिगमेंट्स होता है. बेसिकली 4 पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड सांदोफिल. ओके, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड सांदोफिल. सो ये जो पिगमेंट्स है भी इसमें भी होता है, इसलिए हमने कलर बोलता है. ओके, कलर क्या क्या बोला है उधर? वन इज दैट येलो, सेकंड इज ग्रीन, सेकंड इज ब्राउन एंड ब्लू और रेड. सो ऐसा डिफरेंट कलर में आपको ये इसका पिगमेंट्स देखने को मिलेगा. इसलिए कलर भी वो पिगमेंट्स के अनुसार इनका कलर भी चेंज है. ओके, सो पिगमेंट्स का हिसाब से अभी देखिए, इधर देखो तो आपको मालूम पड़ेगा. कलर देखिए, आपको इधर स्लाइड में देखो तो आपको मालूम पड़ेगा. कलर देखो, अलग अलग कलर आपको इधर देखने को मिलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट्स. एंड वन मोर थिंग, इसका बाहर का सराउंडिंग आप देखिए, इनका कवरिंग आप देखिए. कवरिंग इज वेरी हार्ड. ओके, कवरिंग इज वेरी हार्ड. देखिए, तो ये जो हार्ड कवर को हम बोलता है प्लेट. सो वो सेल वॉल है उसका, वो एक ही सेल है ना, एक ही सेल है, उसका कवर है. ये सेल का कवर को सेल वॉल बोलता है, उसका सेल वॉल है.
लेकिन वो सेल वॉल कैसा है? दैट इज मेड अप ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, stiff cellulosic plates on the outer surface. Oh, that is what you see here. Is very hard in nature because of plate nature, plate like nature. Okay, so it is we call cell wall has stiff cellulose, yeah, hard cellulose plates on the outer surface. Now you see one more important thing. अभी ये देखे तो आपको मालूम पड़ेगा. Okay, why this slide is red colored? आपको मालूम पड़ेगा अभी. Okay, उसके अलावा you can see that in dinoflagellates, for the movement, for the purpose of movement, they have flagella. Two types of flagella they have. Okay, दो flagella हैं. So दो flagella they have. There are two types they have. One is placed longitudinally and other one is placed transversely. So two types of flagella you can see over here. But unfortunately, I cannot show you over here. But if you look at here, some projections you can see that may be something like that. But I cannot show you the exact flagella, flagella over here. But understand, there are two flagella, one placed vertically and the other one placed horizontally. Okay, that means longitudinally and transversely. ये normally कहाँ होता है? Between the base plate, between the plates, the cell plate, wall plate देखा? Between the wall plate, longitudinally and transversely, two flagella plates. How many flagella there? How many flagellas there? How many flagella there? You have any idea? Yeah, very good. Two flagella there. And now you told that this particular slide is showing red color. This is the picture of an ocean. This is a picture of an ocean. What is the color of this ocean now? If the slide is red colored, what may be the color of this ocean also? What is the color? Red. That means in this ocean, you can see that this red colored dinoflagellates are more. So these red colored dinoflagellates are more and they are multiplying very fast. Quickly, they are multiplying and spread over there. And when the water comes, the tide comes, you see the red waves are coming there. The red tides are coming there. And the ocean is looking like red. And that is because of the red type of dinoflagellates. This is not bacteria. This is not bacteria. This is dinoflagellates. And these flagellates, we can say, are red colored. That is why the ocean is also red colored. Example वहां दिया है. वो example आपको याद रखना. What is the name of that red dinoflagellates? One example is there. Then Gonilox. Okay, Gonilox करके the name दिया है. ये name आपको examination point of view याद रहेगा. Why the ocean is red colored? Give reason. Because of red colored dinoflagellates. They multiply very fast and that whole area is covered by these dinoflagellates. And so when the waves are coming, when the tide comes, you see that because of these microorganisms, because of this red dinoflagellates, the ocean looks red. Okay, and we call such tide as red tides. And these dinoflagellates are not good because they are releasing certain chemical substances which are harmful to other living organisms, other marine animals. Especially आपको मालूम है ocean में ज्यादा करके fish वगैरह हैं. So you can see that for other marine animals like fishes, you can see that the toxic materials, the chemicals which are released by these dinoflagellates are harmful. Okay, Pitna, I hope that you understood. Okay, I hope that these dinoflagellates are clear to you. Is it clear to you, friends? Please tell me. If any doubt, you please ask. Otherwise, I have to go ahead. हाँ, मैं डाउट पूछेगा तो जीआर नंबर डाल रहे हैं क्या आशीष? टॉक्सिक पार्ट ज्यादा करके क्या है करके नहीं है. डायनोफ्लैजेलेट सेक्रेटिंग toxic chemical, materials from it, and these chemical materials are added into the water, and these chemical materials are harmful to the aquatic animals like a plant. I'm sorry, fish. इतना ही. Okay, Venkatesh, is it clear to you? Can I go ahead? Okay, so now I'm going to the next two type. Next type means number 3. Number 3 बोलेगा तो यूग्लिना. ये यूग्लिना आपका टेक्स्ट बुक में कहाँ है? Can you tell me? Can you find it out? कहाँ है?
where it is page number 12, second column, pala wala. That means E. Okay. Now we are going to talk about euglenoids. Now, have you seen euglenoids? Yeah, in 10th standard you studied. Very good. So when you talk about euglenoids, you can see that this is mostly seen there in fresh water. अभी मैंने आपको पहले ही बताया था ये फ्रेश वाटर मरीन वाटर का डिफरेंस. फ्रेश वाटर कौन सा वाटर है? फ्रेश वाटर इज विच टाइप ऑफ वाटर? नो सॉल्ट. या नो सॉल्ट बोलेगा तो अपना रिवर, लेक, पॉन्ड, इवन जो पीने का जो पानी ये सब फ्रेश वाटर में आता है. ओके. सो फ्रेश वाटर में रहने वाला एक ग्रुप है प्रोटिस्टा. से नाउ मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है. वी हैव नॉट सीन फेस टू फेस. आपका लैंग्वेज मेरे को अच्छी तरफ से मालूम नहीं है. आप कौन सा मीडियम है मेरे को वो भी मालूम नहीं है. इंग्लिश मीडियम है क्या, वर्नाकुलर है क्या, मिक्स है क्या, लो है क्या, हाई है क्या, मेरे को मालूम नहीं. ज्यादा करके मैं हिंदी बात कर रहे. आपको लैंग्वेज कैसे चाहिए? इंग्लिश, पूरा इंग्लिश या मिक्स? मैं एक बार पूछा था, आपने मिक्स बोला था, लेकिन मैं ज्यादा करके अननोइंगली मैं ज्यादा हिंदी बात कर रहा. इज इट ओके फॉर यू? प्लीज गिव मी a letter, first letter, yes or no. चलता है. ओके. सो मिक्स करके जाता हूँ, लेकिन आप अगर आपको ज्यादा ये लगता तो मेरे को बोलना, क्योंकि मैं ज्यादा, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस हिंदी में दे. ओके, बोथ इट्स ओके, गुड, थैंक यू. ओके, सो यू कैन सी दैट दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेश वाटर वन एंड ऑल्सो इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर बोलेगा तो क्या, उधर फ्लो नहीं है, वाटर रनिंग नहीं है. सो मतलब अभी देखिए उधर आजू बाजू में एक पॉन्ड है तो उधर रनिंग नहीं होता है. ओके. सो ऐसा स्टैग्नेंट वाटर में ये जो यूग्लिनॉइड्स रहता है. ओके. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, earlier means in the two kingdom classification, this particular organism was placed there in the kingdom Animalia, because this particular organism is having no cell wall. अभी आपको मैंने प्लांट्स के बारे में बात करें तो अपना मन में क्या आता है? फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है? प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस आएगा वो एक बात है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फर्स्ट आपका मन में क्या आता है? प्लांट्स बोलेगा तो क्या है? प्लांट्स का सेल को सेल वॉल है, राइट. लेकिन ये जो यूक्लिनॉइड्स है, सो उसको सेल वॉल नहीं है. देयर इज नो सेल वॉल. सो इसको कहां प्लेस किया था? अर्लियर एनिमल्स का कैटेगरी में प्लेस किया था. बट व्हाट एल्स इज देयर? सेल वॉल इज नहीं है. सेल वॉल नहीं है, उसका जगह पे समथिंग एल्स इज देयर. सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. द इंस्टेड ऑफ सेल वॉल उसको क्या था? एक प्रोटीन रिच कवरिंग था. एक प्रोटीन रिच कवरिंग उसको है, and that covering is called the pellicle. So what is the name of the covering? Come on, two terms I want now. Immediately you have to write in the chat box now. What is the name of the covering? Pellicle. And pellicle is made up of what? Pellicle is made up of what? What means what is rich in there? What is rich in there? Protein. So protein rich pellicle. अभी cellulose बोलेगा तो, सॉरी, सेल वॉल बोला तो उसमें ज्यादा करके सेल्यूलोज है. ओके. नाउ because of this pellicle, you can see that this body of this euglena is always very soft and flexible. So मैं वो बात करके मैं आगे जाता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसको भी दो फ्लैजेला है. अभी डायनोफ्लैजेलेट्स में आपने देखा दो फ्लैजेला है. सेम मैनर हियर आल्सो यू कैन सी टू फ्लैजेलेट्स. Okay, there are two flagellates. One is small, the other one is short. अभी इधर देखिए आप, you can see that there is a long dip-like structure. देखिए आपका घर पे किसी को मारने के लिए जो यूज करते हैं ना, एनिमल को मारने के लिए यूज करता है, जैसा कि लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लैजेलम. ऐसा वाला फ्लैजेलम, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है. Okay, two flagella are there. And what is the purpose of this flagella? Can you tell me that? Can you tell me that what may be the purpose of this flagella? Yeah, for the mobility, right? Very good. So ये flagella पानी में ऐसा बीट करके it can move ahead. They can move from one place to another. So locomotory organ is flagella. So याद रखना, locomotory organ flagella. Singular है तो flagellum और many है तो means more than one है तो flagella.
Okay, another important character is that ये plants का जैसा है, cell wall नहीं तो भी plants का जैसा है. Why? Because of its color. अब ये slide का color देखिए. What is the color of the slide? What is the color of the slide? Green. So green color representing that they can prepare food. That means these euglenoids can prepare their own food because they are green colored. They have pigments, so they can prepare their food. But if they want to prepare food, what is required? Light is required. Sunlight is required. So when sunlight is available, they will perform photosynthesis. You got the point clearly, friends? Now, when sunlight is available, they will prepare photosynthesis. I mean, they will prepare their own food. That means they are photosynthetic. But if there is no light, there is no sunlight, what they will do? No energy then. So then they have to depend on other microorganisms for having the food. And then we say it is acting as a heterotrophs. Okay, so एक ही टाइप ऑर्गेनिज्म उसको डबल रोल है, वो सनलाइट का ऊपर. अगर सनलाइट मिल गया, they can prepare their own food. अगर सनलाइट नहीं है, the straight way behaving like animal and they become heterotrophs. अभी आपको समझ में आया है why they are not placed there in plants earlier days. मैंने बोला ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये एनिमल किंगडम में था, because they are acting like heterotrophs. They are having no cell wall. लेकिन आज ये यूनिसेल्युलर होने का कारण they are placed under protista. Got the point? Okay, so you can see that in euglena also, whatever pigments are there, that is why they are able to prepare the food. Whatever pigments are there, all the pigments are similar to that of plants. Example याद रखना, euglena. So euglena आपको clear हो गया, friends? Shall I go to the next slide fast? Okay, I'm going to the next slide. Okay, so next slide is that is called slime molds. आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 में और पॉइंट नंबर डी समझ में आया? देखा टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर डी. ओके, पेज नंबर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 में. ओके, now so what are the characteristics of this one? So this one, if you look at unable to see test. Okay, आपका नहीं, आपका पास टेक्स्ट बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, पेज नंबर 12 में है टेक्स्ट बुक में. हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक आपका पास है तो ओपन करके रखो. उधर पेज नंबर 12 में पहला कॉलम का लास्ट में दिया हुआ है. ओके, मतलब डी पॉइंट नंबर डी देखो. ओके वेंकटेश. ओके, अच्छा, यू हैव ए पीडीएफ, आपको एक साथ. ओके, नो इश्यू, वो बाद में देख लेना. ओके, नाउ स्लाइम मोल्ड हम बोलेगा तो फंगे का जैसा है. अभी आपका टेक्स्ट बुक में दिया है द प्रोटिस्टा मेंबर्स, सम आर लाइक प्लांट्स, सम आर लाइक एनिमल्स, सम आर लाइक स्लाइम, आई मीन फंगस. अभी मैं प्लांट्स का जैसा जो है वो मैं पूरा बता दिया, और उसके बाद अभी मैं आपको फंगे का जैसा जो है बोल रहे. फंगे कैरेक्टर क्या है? द फंगे का जैसा बोलेगा तो द एग्जाम्पल इज दैट स्लाइम मोल्ड और इट्स आल्सो कॉल्ड एज मिक्सोमाइसीट्स ग्रुप है. ओके, नाउ ये जो प्रोटिस्टा मेंबर्स earlier fungi का साथ पेंदा, they were earlier placed in fungi, now it is there in protista. So what is the fungal character? Fungal character बोलेगा तो they are saprophytes. protista, they are saprophytes. Saprophytic means they are depending on dead remains. Dead मतलब उनको जो एनर्जी मिलता है, they are drawing the energy, they are drawing the food. मतलब फूड बोले तो क्या है? एनर्जी. Food means energy. So from where they get this energy? They are getting energy from the dead remains. अभी plants पत्ता लीफ पड़ा है नीचे, या plants का जो कट किया जो है वो टुकड़ा मिला है, so वो soil में रहता है, वो decompose होता है, वहां से energy draw करता है. So ऐसा energy draw करने वाला है slime molds. So हम बोलता है they are saprophytic protista. समझ में आया saprophytes क्या है? Is it clear to you? Saprophytes क्या? Saprophytes means they are drawing energy from the dead remains. वो plants हो सकते तो plants होने दो या animal का dead body होने दो. Okay,
सो दे आर ड्रॉइंग द डेड मटेरियल्स। लेकिन इधर हम स्लाइम मोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इधर एनिमल में नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ना, ये दिस आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द डीकेइंग ट्विग्स, लीव्स। मतलब जो नीचे जो पड़ा, अभी आप देखिए फॉरेस्ट में जाके देखिए, फॉरेस्ट में जाएगा तो क्या होता है, वो सारे बहुत प्लांट्स है उधर, उसमें से लीफ सब नीचे गिरते रहता है, और सोइल आपको देखने को ही मिलेगा, सोइल कवर करके पूरा डीकेइंग क्या है, डिकम्पोजिंग लीव्स है। ओके, एवरीवेयर वेयर एवर ज्यादा करके फॉरेस्ट में ज्यादा दिखते हैं। ओके, okay, so they are decomposing where you can see the slime molds. Okay, so the slime molds are seen, they इधर देखिए, they moves along decaying twigs and leaves engulfing the organic material. Okay, और दूसरा अभी क्या, अभी ये पिक्चर आप देखो तो, अभी स्लाइड आप देखिए, स्लाइड का पिक्चर वही है, बैकग्राउंड में पिक्चर वही है, स्लाइम मोल्ड का पिक्चर दिया है। ओके, सो उधर टू कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। टू कंडीशंस बोले तो हमको मालूम है, एनगल्फिंग बोले तो अंदर ले, पूरा खाना उसको खाता है, पूरा अंदर लेता है। ओके, सो दो कंडीशंस, एक सूटेबल कंडीशन और दूसरा है अनफेवरेबल कंडीशन। अभी आप देखिए, आप इधर रहते टाइम, मुंबई में रहते टाइम, आपका मार्च अप्रैल मई महीने आप इधर से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है मई अप्रैल मई महीने में इधर से, क्यों जाता है इधर से? क्योंकि इधर का टेम्परेचर सो हाई है दैट टाइम, वो हॉलीडे, लेकिन हॉलीडे क्यों दिया, वो टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब वो सीजन आपको उतना फेवरेबल नहीं है। आपका सीजन फेवरेबल कभी होता है, नवंबर दिसंबर, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ना। सो जस्ट लाइक दैट, आपको इधर दो कंडीशंस देख सकता है, एक ही सूटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये पूरा ज्यादा स्प्रेड होगा, ये फ्लरिश होगा, ये जो स्लाइम मोल्ड है ये पूरा फ्लरिश हो जाएगा, उधर का सभी अभी सभी जो डिकेइंग लीव्स को एनगल्फ करके ये पूरा एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा। पूरा एरिया को स्प्रेड होता है तो उसको बोलता है प्लास्मोडियम, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्मोडियम, दैट ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। बहुत ज्यादा एरिया क्या करेंगे, एक आपको माने ग्रास, कभी कभी ग्रास ऊपर आते हैं ना, ग्रास अभी रिसेंटली ग्रास ऊपर आकर बहुत तकलीफ दिया, जैसा ये क्या होता है, पूरा एरिया पे ये स्प्रेड हो जाएगा, एंड देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लास्मोडियम। लेकिन मैं ये प्लास्मोडियम बोलते टाइम ध्यान में रखना, प्लास्मोडियम इज नॉट द वन विच इज कॉजिंग डिसीज मलेरिया। ओके, ओके, सो ये जो फेवरेबल कंडीशन में जो स्प्रेड होता है तभी उसको बोलता है प्लास्मोडियम। बट एट द सेम टाइम देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस आल्सो। So when there is an unfavorable condition, what will happen in during unfavorable condition from the plasmodium? Now you see this is the plasmodium. What do you see over here in dark color? In dark color, what do you see over here? That is the plasmodium. But when the season becomes unfavorable, from the plasmodium, you see this red button-like structure they originate hota hai. So from the plasmodium, certain structures are getting originated. You see that is very attractive. ये बड़ा करके दिखाया है, very attractive and colorful. And this structure is known as the fruiting bodies. This is known as fruiting bodies, and they are producing the spore at the tip. They are producing the spore at the, and this spore, if you look at इसका एक nature है, they are very thick. मतलब उनका जो wall है, the cell wall, I mean the true wall, the walls are very true, very thick. And because of this reason, whatever is the condition, means they can survive in the place where it is for such a long time. It cannot be perished, it cannot be destroyed. Okay, yeah. So we can see that this is surviving there in a place where it is for such a long time because of the thick wall of the fruiting bodies. And fruiting bodies are producing the spore, and these spores are spread there in the air, and then it is, I mean, it can be dispersed by air. ओके, आपको स्लाइम मोल्ड के बारे में आपको समझ में आया लगता है। मैं रिपीट करके एक पॉइंट बोल रहे हैं। वन, इट इज फंगे का जैसा है, सैप्रोफाइट्स हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट का मटेरियल डीकेइंग लीफ को खाता है, यूज करता है। और सीजन जब अच्छा है, ज्यादा खाना मिलेगा तो आपको कैसे लगता है, ज्यादा खाना मिलेगा तो यू बिकम, ये लॉकडाउन का टाइम आप लोग घर पे बैठा था, कुछ भी काम नहीं था, ओके, कितना अच्छा सीजन था, ज्यादा खाना मिलता है, कुछ मेहनत नहीं करने का, यू बिकम फैट, है ना, आपका वेट इंक्रीज हो गया। जैसा फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है,
ये स्प्रेड ओवर देयर, लार्ज एरिया पे स्प्रेड होएगा, उसको बोलता है प्लास्मोडियम। जब सीजन अनफेवरेबल होता है, ये प्लास्मोडियम स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, that will produce spore and thereby it is getting multiplied. Okay, you got it clearly, friends? Now got it clearly? Any difficulty to understand? Yes. Okay, now I go to the next slide. Now the fourth one is over. Now we come to the fifth one. Fifth one is animal like. ये आपका टेक्स्ट बुक में मिलेगा, 5वां नंबर, सॉरी बी, second number, page number 11. In page number 11, second number, that is animal like. And this animal like we simply call as protozoans. What do you call? What do you call this one? Protozoans. Okay. Okay. Now you see, for such a long time I was keep on talking to you. We will go for a poll. We'll take a break. मैं आपको ये 2 लेक्चर के बीच में जो 15 मिनट का जो लेक्चर आई मीन गैप है, वो मैं आपको नहीं दे रहे अभी। मैं कंटिन्यू करके 4:15 तक नहीं जाऊंगा, वो 15 मिनट मैं आपको उधर देता हूँ। ओके, इज इट ओके फॉर यू? अटेस्ट से कदम करके मैं उधर देता हूँ आपको ब्रेक। गुड। ओके, सो मैं एक पोल के लिए जाएंगे। वी विल गो फॉर अ पोल एंड आफ्टर दैट विल कम बैक। नाउ यू जस्ट वेट फॉर द पोल। आई एम गोइंग टू रिलीज द पोल नाउ। पहला चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 का एक पोल दे रहे अभी, देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, देख लीजिए। नाउ यू गॉट द पोल देयर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चंस ज्यादा है, सो दोनों आपको आंसर करना है, सबमिट करना है। ओके, 2 क्वेश्चन से एक साथ आंसर करना। Okay. Okay, done. Okay, now the 1 minute time is over. Second question also you have to submit. Okay, ज्यादा लोग अभी तक डाला नहीं है, खाली 14 लोग डाला है। Quickly you put the answer them. Can you please the now ये क्वेश्चन अभी ग्रुप में नहीं आएगा, ये तो पोल है ना, ये पोल उसका अंदर ही करने को होता है। Poll can be done only there in the lecture room. We cannot do it outside. चलेगा चलेगा, आपको रॉन्ग हो गया तो भी टेंशन मत लो, इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। ओके, आई होप दैट एवरीबडी विल डू इट फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों करने के बाद सबमिट करो। नाउ टाइम 2 मिनट्स ओवर। अभी मैं थोड़ा टाइम आपको देगा बस, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सबमिट करो। $28 students submitted, 60% submitted now. Now 8, 7, 6, 4, 5, 3, sorry, 5, 4, 3, 2, 1, time over. Okay. Now you see the result on your screen. Now you see the result on your screen. Now you can see that the first question is that who classified living organisms into kingdom Plantae and kingdom Animalia? Two kingdom classification किसने किया था? अब इधर अभी 17 people, मतलब 53% of people said that Carl Linnaeus. What is the correct answer, friends? Use the chat box. What is the correct answer? Carl Linnaeus. So Carl Linnaeus is the correct answer. The name of the scientist you have to remember. He is the man who did the two kingdom classification first. Now after that, the second question is that
Living organisms are grouped into 5 kingdoms called Monera, Protista, Animalia, Plantae, and Fungi. That is what we are studying right now. Who contributed this 5 kingdom classification? Who contributed? Again, you see that today I said that name many times, but still some people gone with Candolle, some gone with Linus, some gone with Vos, or some means 19 people. 19 people means 59% of people said R.H. Whittaker and Baki Lohunga mistake. Okay. अभी APD control और Carl Linus का contribution सब अलग है. ओके इवन कार्ल वोस का भी और वोस ने क्या किया है वो 3 किंगडम डोमेन लेके आया है 3 डोमेन का एक प्रोविजन लेके आया है ओके सो करेक्ट आंसर इज दैट पहला वाला करेक्ट आंसर कार्ल लीनस सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आरएच विटाकर ओके मैं ये स्टॉप कर रहे अभी आपका आंसर आपको मालूम है आपका रॉन्ग है या गलत मींस राइट है आपको मालूम है ओके नाउ आई एम गोइंग टू पुट वन मोर क्वेश्चन and after that this polling I will stop one more poll in that there are 5 questions in that there are 5 questions you take time and solve quickly okay 5 questions are there do it fast don't waste your time 5 questions answer करके submit करना do it fast now 1 minute is going to over अब जल्दी जल्दी कर दीजिए now 2 minutes over okay 3 minutes going to over now 5 questions इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहे आपको क्वेश्चन का नंबर 5 है इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहे हैं लेकिन डू फास्ट आई विल शो यू द रिजल्ट प्लीज वेट यू विल गेट द रिजल्ट प्लीज वेट मैं अभी तक एंड नहीं किया पोल डू फास्ट यू विल गेट ओनली 10 minutes I mean 10 seconds more 10 seconds more now
Now I will start countdown now. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time over. Okay. Now you see the result over there. Yeah, now you see the result on the screen. Now first question is that cell wall of kingdom Monera is made up of. अब देखिए 39% people saying that cellulose, that is showing the majority. लेकिन उसमें मैं 4 names दिया था, murine, cellulose, peptidoglycan and chitin. Which is the correct answer, friends? Peptidoglycan. The correct answer is that peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा एक नाम है म्यूरेन, और सेल्यूलोज जो बोलता है वो प्लांट्स का है, काइटिन जो बोलता है वो फंगस का है. ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट पेप्टिडोग्लाइकन. ओके, नंबर 2 मोनेरा इंक्लूड्स डैश ऑर्गेनिजम्स. ये पूरा क्वेश्चन मोनेरा का ऊपर था. मोनेरा इंक्लूड्स डैश ऑर्गेनिजम्स. 1 यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, number 2 unicellular prokaryotes, number 3 multicellular eukaryotes, and 4 multicellular prokaryotes. Which is the correct answer? Unicellular prokaryotes. Okay, unicellular prokaryotes. Okay, even some filamentous one is also there. कॉलोनी में रहने वाला भी है, लेकिन हम ज्यादा करके बोलता है unicellular prokaryotes. That is the correct answer. Number 3, फाइंड द टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन मोनेरा. मैं आपको क्लियरली कल बताया था, ये ध्यान में रखना करके. 30 इयर्स, 40 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स. ये 30 इयर्स, 40 इयर्स सब क्या है, मैं आपको जो सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते थे मैं आपको बताएंगे. ओके, तो 70 इयर्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. 80 इयर्स यूकैरियोट का है. ओके, 70 इयर्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट नेम द टाइप ऑफ बैक्टीरियम having a comma or kidney shape. सॉरी, उधर पूरा लेटर आया नहीं है, शेप. एक्चुअली क्वेश्चन शेप है, पी नहीं आया. ओके, कॉमा और किडनी शेप्ड बैक्टीरियम कौन सा है? ओके, सो एनीवे हियर क्वेश्चन में एक लेटर मिस हो गया, तो भी 42% पीपल सेड विब्रियो. अब ये राउंड है तो कॉकस बोलता है, रोड शेप है तो बासिलस बोलता है, स्पाइरल का शेप है तो स्पाइरलम बोलता है, कॉमा शेप है तो विब्रियो बोलता है. सो विब्रियो इज द करेक्ट आंसर. मेजॉरिटी विब्रियो है. ओके, सो विब्रियो इज द करेक्ट आंसर नाउ. एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया व्हिच आर यूजफुल टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक. क्वेश्चन ध्यान से देखने का था, कुछ लोग आंसर देख बराबर देखा नहीं है. या आई एम गेटिंग द आंसर ऑन द स्क्रीन नाउ. Streptomyces, some people are saying, some people saying rhizobia. Rhizobia is not the correct answer. The correct answer is that Streptomyces. Okay, लेकिन मेजोरिटी इधर क्या बोला, लैक्टोबासिली. ये लैक्टोबासिली काय के लिए यूज कर रहे हैं? लैक्टोबासिली काय के लिए यूज कर रहे हैं मालूम है? नॉट एंटीबायोटिक्स के लिए. दैट इज फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, या फर्मेंटेशन पर्पस, लैक्टोबासिलस इज यूज्ड. और एसिटोबैक्टर, यू कैन सी दैट एसिटोबैक्टर, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है. नाइट्रोजन फिक्सिंग है. राइसोबियम ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है. ओके, सो इतना है ये जो पोल के बारे में. आज का पोल में इधर बंद कर रहे हैं, अभी टॉपिक में चले जाता है. ओके, नाउ विल गो टू द टॉपिक नाउ. व्हाट इज द आंसर? मैं पूरा बोला ना, आंसर मिस हो गया. इधर का आंसर क्वेश्चन क्या था लास्ट वाला? व्हाट वाज द क्वेश्चन? एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक का करेक्ट आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिस. ओके, सो नाउ वी कम टू द लास्ट प्रोटिस्टा मेंबर, दैट इज प्रोटोसोवेंट्स. प्रोटोसोवेंट्स आप देख लीजिए. प्रोटोसोवेंट्स के बारे में बात करते हैं. दे आर लुकिंग लाइक एनिमल्स. ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मेंबर्स है. एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मेंबर्स बोलेगा तो दे आर नॉट एट ऑल प्रोड्यूसर्स, दे आर नॉट एट ऑल ऑटोट्रॉप्स. फिर क्या है? दे आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या है? जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए. हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉप्स? Yeah, they are depending on others for their food. Okay, so like us, they are depending on others for their food. So they are primitive animals का जैसे इसलिए इधर लिखा है, that is, this is the reason it is written that they are primitive relatives of animals. Okay, now
These heterotrophs have two types here. One is predator, second is parasite. ये predator क्या है? Predator क्या बोलेगा तो they are engulfing the food. Holozoic nutrition जो करता है, पूरा acids अंदर करता है, और that is what we can say predator. Okay? और they are parasites. Parasites क्या है? दूसरे का ऊपर डिपेंड करके रहने वाला. Okay? So the heterotrophs are either predators or parasites. Okay? I hope that you got it clear. Now, predator means they are eating, they are engulfing the things. Engulf कर रहे, मतलब फूड पार्टिकल्स. अभी आप देखिए, आप बाहर कुत्ता है, बिस्किट डाल के दिया, कुत्ता क्या करेंगे? कुत्ता उसका ऊपर रहेंगे और उसके बाद उधर से कुछ अब्सॉर्ब करके लेगा या एसिडिटीज पूरा अंदर डाल देगा? मतलब पूरा एनगल्फ कर देगा. ओके, दूसरों को ऐसा ही खाएंगे पूरा. ओके, नाउ यू कैन सी दैट these protozoan members are 4 groups. How many groups of protozoan members are there? 4 groups of protozoans are there. What are those protozoans? Number 1, amoeba, amoeboid protozoans. Number 2, flagellated protozoans. Number 3, ciliated protozoans. And number 4, sporozoans. मैं कितना बोल दिया आपको? कितना बोल दिया? 4 टाइप्स मैंने आपको बताया है, 4 मेजर ग्रुप्स आपको मैंने बताया है. पहला वाला, फर्स्ट लेटर लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में. पहला वाला, आपका चैट बॉक्स रेडी रखने का. amoeboid. Second is than flagellated protozoans. Third is than ciliated protozoans. And fourth one is than sporozoans. Sporozoans. अभी आप डिटेल में दिखाएंगे आपको मैं. अब अभी डिटेल देखने वाला देख लीजिए. ओके, अभी देखिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऊपर आ गया है. आप देखिए 4 पूरा लिस्ट आपको नीचे नीचे उधर कर दिया है. देखिए, सो फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन? दैट इज कॉल्ड amoeboid protozoans. Now what is an amoeba? Look at this amoeba now. Now you see the amoeba is coming on your screen right now. Now this is amoeba. This was an animal earlier, according to 2 kingdom classification. Now it is placed there in the kingdom Protista. Okay, so this amoeba, if you look at, you can see that there is a structure like this. Okay, and where it lives there in fresh water or sea water or even in moist soil. सोइल में जब मोइस्ट होता है, मोइस्ट सोइल में भी आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी इसको देखने को मिलेगा, ओशन में भी आपको देखने को मिलेगा. सो अमीबा सब जगह पे है, लेकिन पानी होना चाहिए, बस इतना ही. ओके, दैट पॉइंट इज क्लियर फ्रेंड्स. नाउ दैट पॉइंट इज क्लियर. सो पानी होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट. दैट इज व्हाई फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोइस्ट सोइल. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट. Second point, if you look at over here, one second there. See, second point is that, देखिए उसका कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप इधर. देखिए एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप. व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स? देखिए फिंगर का जैसा कुछ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. सो व्हाट डू यू कॉल इट? फर्स्ट लेटर लिखिए आप. व्हाट डू यू कॉल इट? व्हाट इज इट्स नेम? अब इधर देखिए, ये है अमीबा. अमीबा को देखिए कुछ प्रोजेक्टेड पॉइंट्स उधर देखने को मिलता है, हिल का जैसा. व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीडोपोडिया. सीडोपोडिया, दैट इज कॉल्ड, इधर देखिए, जीडोपोडिया. जीडोपोडिया, पोडिया मीन्स फुट. आपका फुट होता है ना, फुट है, हाथ है, फुट होता है ना, द फुट इज नोन एज पोडिया. सीडो मीन्स फॉल्स. सीडो मीन्स क्या है? सीडो मीन्स फॉल्स. सो सीडोपोडिया मीन्स क्या है? राइट द मीनिंग देयर इन द चैट बॉक्स. पोडिया मीन्स क्या है मैंने बताया. सीडो मतलब क्या है मैंने बताया. तो सीडोपोडिया मतलब क्या होगा? हेलो, आर यू हियर? फॉल्स फुट, वेरी गुड. सो फॉल्स फुट इधर स्लाइड में भी लिखा है. सो दिस इज कॉल्ड फॉल्स फुट. ये फॉल्स फुट काय के लिए यूज करता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन कैरेक्टर. सेकेंड पॉइंट इज दैट ये जो पानी में रहता है, ये पानी में फूड पार्टिकल्स ऐसा फ्लोट करके आता है. सो द फूड पार्टिकल्स आर मूविंग देयर इन द वाटर बाय फ्लोटिंग. सो ये जो अमीबा क्या करेंगे,
अमीबा ये फूड पार्टिकल्स का पास जाके ये पोडिया यूज करके फूड मटेरियल्स को अंदर लेता है. Okay, that means it catching the food. You see, move and capture the prey by putting out pseudopodia. That is the function. That means it is engulfing the food materials as it is. Engulfing the food materials as it is. That is predation. Okay. Example, amoeba. And if you look at marine forms of amoeba, yeah, amoeboid protozoans का marine form आप देखेंगे ना, this type of marine forms are having an outer covering, outer shell is there, made up of silica. The silica, I'm talking about not about amoeba, I'm talking about amoeboid protozoans. So in amoeboid protozoans, they have an outer covering. Marine forms को एक outer covering होता है that is made up of silica. Silica. And last, some amoeboid protozoans are parasites. Some amoeboid protozoans are कैसा है? They are parasite. Parasite मतलब क्या है? Parasite मतलब क्या? जल्दी बोलो chat box में. What is parasite? मैं आपको अस्कैरिस के बारे में बोला था, लाइस के बारे में बोला था. पैरासाइट क्या है? इवन कॉकरोच, आई मीन सॉरी, मॉस्किटो इज आल्सो ए पैरासाइट वी कैन से. व्हाट इज पैरासाइट? डिपेंडिंग ऑन अदर्स मतलब कौन सा टाइप है? लिविंग वन. डिपेंडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. गुड and I got the answer there. So depending on living organisms for their food, such organisms called as parasites. अभी अस्कैरिस अपना पेड़ में रहते तो क्या होता है? हम जो खाना खाता है, वॉट एवर यू आर हैविंग, वॉट एवर यू आर ईटिंग फॉर योर बॉडी, आपका बॉडी के लिए आप जो खाता है वो किसको शेयर करना पड़ता है? अस्कैरिस को शेयर करना पड़ता है. वो पूरा खाना अस्कैरिस लेके अस्कैरिस का नंबर मल्टीप्लाई होगा, अपना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा. So it is a parasite. Okay, so living on other organisms. So here you can see that some of amoeboid protozoans are parasite. वो भी कौन सा टाइप parasite? Example दिया है endamoeba. Endamoeba is example for that. Endamoeba, remember, that is an endoparasite. Yes, it is harmful to us. That is that is an endoparasite. Endoparasite बोले तो अपना बॉडी का अंदर है. ये आपको देता है डिसेंट्री. डिसेंट्री मालूम है ना? डिसेंट्री मालूम है आपको? डिसेंट्री डिसीज मालूम है? लूज मोशन वगैरह होता है, अमीबोइड डिसेंट्री. सीरियस कंडीशन में अमीबोइड डिसेंट्री होता है. ओके, लूज मोशन होता है. ओके, सादा लूज मोशन के बारे में, सीरियस वाला अमीबोइड डिसेंट्री अमीबा का वजह से होता है, मतलब प्लाज्मोडियम का वजह से, सॉरी, एंडामीबा का वजह से होता है. ये कहाँ होता है? इट इज इनसाइड. अभी अभी मॉस्किटो आपका अंदर नहीं जाता है. मॉस्किटो आपका बॉडी का ऊपर आके आपका खून लेके जाता है. दैट इज एन एक्टोपैरासाइट. दैट ये लीच, दैट इज एन एक्टोपैरासाइट. लेकिन ये कहाँ रहता है? दिस एंड इनसाइड द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एन एंडोपैरासाइट. एंड दिस एंडोपैरासाइट इज कॉजिंग हार्म. कैसे हार्म होता है? इट कॉजेस वेरियस डिसीजेस लाइक इवन एंडामीबा का केस में कौन सा डिसीज होता है? दैट इज कॉल्ड अमीबॉइड डिसेंट्री. अभी सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटोजोवन में बात करने को जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवंस. Flagellated protozoans means they are mostly free living or it can be parasitic also. Okay, the flagellated one may be free living or it can be parasitic also. Okay, ज्यादा करके स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स लेता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका बॉडी अब्सॉर्ब करता है. लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट है. ओके, so free living or parasitic. Now, another important thing is that flagellated protozoan बुलाने का कारण ये जो this protozoan is having a long flagella-like structure like this. देखिए, this is flagellum. हमेशा याद रखना, flagellum बोलेगा तो that is very long. मैं आपको कल hair के बारे में बोला था, याद रखना. So this is having flagella. And parasitic one, we can say that always causing diseases. अभी इधर एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ट्रिप्नोसोमा. अभी इधर जो पिक्चर आपको देख रहे हैं, the picture I am showing over here is called a trypanosoma. A trypanosoma is a parasitic flagellated protozoan, and this is also giving you a disease. The name of the disease is that sleeping sickness. So it causes sleeping sickness. So इतना ध्यान में रखो, sleeping sickness. मैं थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, अभी 15 मिनट में बंद करना है. ओके, क्योंकि आपका क्लास खत्म होने के बाद ये जो सिस्टम है ना, पूरा दूसरा एक कॉलेज के लिए मेरे को देना है, दूसरा कॉलेज का क्लास चालू करना है. ओके, so flagellated protozoans.
Now we come to the third one. Third one, we can see that is called ciliated protozoans. What do you call it as? Ciliated protozoans. मैं कल आपको फ्लैजेला क्या है, सिलिया क्या है बोला था. फ्लैजेला बोलेगा तो लॉन्ग वन है, सिलिया बोलेगा तो क्या है, आपका हेयर का जैसा. देखिए इनका बॉडी में देखिए छोटा छोटा हेयर का जैसा दिखता है, ये बहुत होता है, हेयर लाइक, एंड मेनी आर देयर, and this is called, or this is why it is called ciliated protozoans. Now रहता है किधर, aquatic, no doubt, and they are having cilia. Their movement, cilia is a locomotory organ, we can say, because they are moving cilia, they're in the water, and so water currents are produced. They can move from one place to another, and also the food particles which are there in this water can enter into a particular or a mouth-like structure what it has. Okay, so actively move using cilia. Cilia is a locomotory organ, and in addition to that, this is paramecium. आप देखिए paramecium, छोटा क्लास में आप स्टडी किया होगा. Okay, so this is paramecium. In this paramecium, you see this is the digestive system like structure उनका. Okay, इधर एक गलेट होता है. एक गलेट is having an opening over here. देखिए oral groove. Oral groove होता है, oral बोले तो mouth. Okay, groove बोले तो opening. So एक mouth opening आपको इधर देखने को मिलेगा. ये सिलिया पानी में ऐसा बीट करते टाइम फूड पार्टिकल्स जो है ये धीरे धीरे इसका अंदर जाएगा, ये गट का अंदर जाएगा. That is what is written here. They have a cavity or gullet that opens to outside. This is the place, that is what is called oral groove. And due to the movement of cilia, what is happening? Water with the food enter into this gullet. Example दिया है paramecium. इतना आपको समझ में आया ये वाला ciliated protozoans? अभी मेरे को लास्ट बात करके ये पार्ट इधर बंद करना है. Okay, this is clear to you, friends? Please tell me quickly. Please tell me fast. Okay, good. Now I come to the last one under this, that is called as sporozoans. Now this is called as sporozoans. Sporozoans very simple, ज्यादा कुछ इसके बारे में बात करने को नहीं है. एक या दो वर्ड्स आपको बोलना है. One, it causes infections. It is an infectious spore-like structure. Sporozoans are ज्यादा करके they are infectious और disease, infectious disease होता है. Infectious disease बोले तो स्प्रेड होने वाला disease. Okay, और उसका अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज है, उनका लाइफ स्टेज में देखिए एक स्पोर का जैसा स्टेज है. ये जो स्पोर क्या करता है, दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. आपको मालूम है मलेरिया? हैव यू हर्ड अबाउट मलेरिया फ्रेंड्स? जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि हमको जल्दी वाइंड अप करना है. सब मलेरिया मालूम है? आपको मलेरिया किधर कैसे मिलता है? हाउ यू गेट मलेरिया और विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? कॉमन नॉलेज बोलिए आप. फीवर, लेकिन मेरे को आंसर मिल गया, मॉस्किटो. आपको मलेरिया मिलता है बिकॉज ऑफ मॉस्किटो. डू यू थिंक दैट मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? मॉस्किटो बाइट, ओके, लेकिन डू यू थिंक दैट एग्जैक्टली मॉस्किटो इज द रीजन? नो, मॉस्किटो इज नॉट द रीजन. देन व्हाट इज द रीजन? प्लाज्मोडियम, दिस पर्टिकुलर स्पोर. फिर कैसे मॉस्किटो बाइट करेगा तो आपको डिसीज होता है? क्योंकि ये जो मलेरिया, मतलब ये जो प्लाज्मोडियम, ये जो स्पोर मॉस्किटो में है. ओके, ये मॉस्किटो में है. जब मॉस्किटो अपना बॉडी को बाइट करते टाइम ये स्पोर अपना बॉडी में ट्रांसफर होता है. ओके, सो इट इज इन्फेक्शियस. बट उनका लाइफ में, ये प्लाज्मोडियम का लाइफ में ये मलेरिया ट्रांसमिट करने के लिए एक एजेंट तो जरूरी है. That is why it is written there. In their life cycle, you can see that there is a spore-like stage, and this spore is transferred to transferred to human beings or whoever when mosquito bites through mosquito. Okay, example Plasmodium, malarial parasite. This is malarial parasite. आपको malaria you are getting not because of mosquito. Mosquito is a mediator. Mosquito is a carrier. Mosquito is an agent. Again, malaria you are getting because of the spore-like protozoan called a Plasmodium, and it causes malaria. I hope that you got protozoans, protista in detail clearly. पूरा notes chat box classroom में डाला है. आज ही वो notes आप देख लेना. मेरे को अभी और एक किंगडम बात करना है, ज्यादा कुछ नहीं है. मैं फंगस में नहीं जा रहा अभी, सीधा मैं जाएगा किंगडम प्लांटे. आई एम गोइंग टू किंगडम प्लांटे. ये आपको ज्यादा कुछ मालूम है इसलिए मैं ये पार्ट अब भी ले रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है.
ओके, प्लांटे एंड एनिमेलिया, क्योंकि ये किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया आपको बाद में डिटेल्ड स्टडी करना है. So you have to study all these things there in detail in another chapter. So here they are given only the points, 2-3 points given. That 2-3 points I want to present to you. Okay. Now kingdom plantae. Actually kingdom fungus explain करना, kingdom fungi explain करना का था, but kingdom fungi अभी मैंने skip किया. Next class में मैं बात करूंगा. Kingdom plantae बोलते हैं. Now kingdom plantae देखिए, very fast देख लीजिए. Okay. Now kingdom plantae, you know, in kingdom plants we can notice that all the organisms are having chlorophyll pigments. Eukaryotes करके repeat करने का जरूरत नहीं. I think you know everything now. So those words I skip. So all the organisms, all the plants which are belong to kingdom plantae, they are eukaryotic. No need to explain. But the plants, all the plants belongs to this group, we can say they have chlorophyll pigments. That is why they are capable to prepare their own food. Okay, so they are having chlorophyll pigments. Second point is that in plantae, all the plants are having cell wall, which is made up of cellulose. वो भी आपको clear है ना friends? मैं repeat explain करने का जरूरत नहीं है ना? The plants are having cell, and cell is having a cell wall, and cell wall is made up of cellulose. That means cellulosic cell wall. Now, another important point you have to remember that mostly, you know, plants are preparing their own food. They are autotrophs. But there are certain plants. They are partially heterotrophic in nature. You got the point, friends, now clearly? Some plants are there which are partially heterotrophs. Partially heterotrophs means, for example, the bladder is there, bladderwort is there, pitcher plant is there, then Venus flytrap is there. And all these plants, if you look at, you can see that they are insectivorous plants. They are what kind of plants? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अभी मैं इरिटेबिलिटी का उधर आपको मैं वीनस ट्रैप का पिक्चर दिखाया था. एक फ्रॉग को एक कैसे अंदर ले लिया करके मैंने आपको दिखाया था. याद है क्या फ्रेंड्स? नाउ you have the memory of that. I told you about that. Okay, Venus flytrap. Okay, these are insectivorous plants. Okay, so these are insectivorous plants, and what they do, they are depending on other insects and all for their food. So they are heterotrophs. They are preparing their own food. At the same time, they are depending on other living organisms like insects or even frog and so on, when grasshopper, so and so for their food. So we say they are insectivorous plants. And at the same time, there are some other plants. This you see this yellow wiry plant. This also a plant, but this yellow wiry plant is called as Cuscuta. This is Cuscuta, and this plant cannot prepare on food. वो टोटली डिपेंडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. दूसरा प्लांट्स को डिपेंड करते हैं. अब इधर देखिए, ये प्लांट है ना, ये येलो वायर आपको इधर रोड साइड में देखने को मिलेगा. ये जो येलो वायर नहीं है, ये प्लांट है. ये प्लांट का कलर येलो है, ग्रीन नहीं है. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे आर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड. दैट मीन्स दैट इज अ टोटल पैरासाइट. कस्क्यूटा इज ए टोटल पैरासाइट. समझ में आया? मैं फास्ट जा रहे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ओके, देन नाउ द किंगडम प्लांटे इज actually consisting of, or it is composed of other divisions. बोलेगा तो it includes basically two divisions are there. One is called cryptogams and second is called phanerogams. Cryptogams and phanerogams. Yeah, non-flowering plants and flowering plants. Cryptogams means non-flowering plants. Okay, non-flowering plants. What are they? Algae, fungi, and pteridophytes. Sorry, not fungi. Algae, bryophytes. That is उसका नाम moss. Okay, algae, moss plant. That is bryophytes, and fern, pteridophytes. Algae, bryophytes, pteridophytes. ये तीनों कैसा है? They are cryptogams. They are non-flowering plants. लेकिन gymnosperms and angiosperms उसमें आपको फ्लावर देखने को मिलेगा. They have flowers, they have seeds, they have substructures. So it is called as phanerogams. Okay, so in short we can say kingdom plantae में 5 subdivisions होता है. algae बोले तो thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. ये हमको डिटेल बाद में स्टडी करना है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूं. Okay,
नाउ लास्ट स्लाइड ये प्लांट्स का लाइफ में आपको 2 स्टेज देखने को मिलेगा। 2 स्टेज बोलेगा तो एक स्टेज में डिप्लॉयड कंडीशन होता है, एक स्टेज में हैप्लॉयड कंडीशन होगा। मैं आपको हमारा ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल मैं आपको बताएगा जल्दी, तभी आपको मालूम पड़ेगा। आपका ये बॉडी देखिए, ये बॉडी कैसा है ना, ये ह्यूमन बॉडी ले लो या प्लांट्स ले लो, देखिए ये डिप्लॉयड है। ये जो प्लांट्स है, ये ह्यूमन एनिमल बॉडी है, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड बोलेगा तो स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट क्या करेंगे, उसका अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करके बाद में गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, कैसा गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, बाय मींस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो मियोसिस में गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा तो वो हैप्लॉइड बन जाता है। ये हैप्लॉइड बाद में फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। सो मतलब उनका लाइफ में, अभी अपना लाइफ में भी हम लोग डिप्लॉयड है तो भी हम लोग हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो हैप्लॉइड सेल्स का लाइफ थोड़ा टाइम है, लेकिन ज्यादा टाइम कौन सा स्टेज रहता है, डिप्लॉयड स्टेज रहता है। इस सेम मैनर इन प्लांट्स आल्सो यू कैन सी 2 स्टेजेस आर देयर। वन इज ए डिप्लॉयड स्टेज, दैट इज द डोमिनेंट स्टेज। अपना सराउंडिंग में जो प्लांट्स आप देखेंगे तो दैट इज द डोमिनेंट वन। अब जो लीफ फ्लावर जो देख रहे हैं ना, वो डिप्लॉयड है, वो स्पोरोफाइट है, वो डोमिनेंट है। ओके, लेकिन ये जो फ्लावर का अंदर गैमीट्स जब प्रोड्यूस करेगा दैट बिकम गैमेटोफाइट, लेकिन ये छोटा ड्यूरेशन के लिए है। सो ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट ऑन फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। ये इट इज गोइंग ऑन इन ऑल्टरनेट में ये प्रोड्यूस होता रहता है। सो इसीलिए हम बोलता है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, in the life history of plants, there are 2 stages, there are 2 phases. There is a diploid phase and there is a haploid phase. And diploid phase and haploid phase alternate with each other. Haploid से diploid होएगा और diploid से diploid से haploid होएगा और haploid से वापस diploid बन जाता है। This is going on continuously. Okay? लेकिन ये जो diploid stage और haploid stage सेम लाइफ है क्या, कौन सा ज्यादा टाइम कौन सा शॉर्ट पीरियड, ये सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। और ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सभी ग्रीन प्लांट, सभी प्लांट्स ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता ही है। सो ऑल द प्लांट्स आर हैविंग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट विद गैमेटोफाइट एंड वाइस वर्सा। समझ में आया फ्रेंड्स? Now it is 4 o'clock. I have to stop here. Okay. I hope that you understood this part clearly. Okay. I hope you understood. I will share it. I will tell you later. Now today time is over because I want to give this system to other. So मैं आपको ये बात पूछ रहे, Friday morning 9:30. Can you attend my lecture if I put the post? I mean, can you come in the classroom Friday morning 9:30? If you come Friday morning 9:30, I can explain the things. और रेगुलर लेक्चर आपको जो 2 लेक्चर है वो दिन, एक 1:30 से जो लेक्चर है और एक 4:30 से जो लेक्चर है। 4:30 का लेक्चर में वो दिन आपको बताऊंगा क्या करना है। ओके, इफ यू आर ओके 9:30 यू गिव मी द मैसेज लेटर ऑन इन माय व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप में आप मैसेज दे दो मेरे को, आपका सिचुएशन कैसा है। इफ now 80 students are there in the classroom. Right now only 40 students are attending. You ask other students also if they are willing to come, then I can take 9:30 to 10:30, that much time. बस 10:30 को दूसरों को देना है। ओके, 9:30 to 10:30 मेरे को बताइए आप। 9:30 to 10:30 आप हो सकते तो व्हाट्सएप कर दो और मैं वो हिसाब से आपको ग्रुप में, अपना बायोलॉजी का ग्रुप में मैं मैसेज डालेगा। आपका क्लासरूम में आपका जो सीजीमिस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, बी डिविजन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बायोलॉजी रिलेटेड कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी पोस्ट नहीं करना। आपको जो कुछ बोलना है मुझे डायरेक्ट बोलना बायोलॉजी के बारे में, और हमारा कम्युनिकेशन हमेशा थ्रू बायोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? आवर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज थ्रू बायोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप। टुडे आई पोस्टेड आवर लेक्चर का टाइमिंग आपका क्लासरूम में डाला है। आपका प्रीवियस लेक्चर खत्म होने के बाद 2:15 को ज्योति मैडम का क्लास खत्म हो गया, इमीडिएटली मैंने आपको लिंक डाल दिया उधर। मैं ऐसा ही करूंगा आपका क्लासरूम में। मैं पहले डाल के रखे तो क्या होता है, उसका ऊपर बाकी लोग डाल के बैठेगा तो अपना जो लिंक है ना,
एकदम पीछे जाएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस लेक्चर जब खत्म होगा तुरंत आपको लिंक उधर मिलेगा, लेकिन अपना लिंक हमेशा सेम है। अपना लिंक लिंक नहीं मिला तो भी आपको टेंशन नहीं लेने का, सीधा जो पहले का जो लिंक आपके पास है क्लिक करो, पासवर्ड डाल दो, ज्वाइन करो। ओके, अभी बालकृष्ण वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग माय सेशन, यू आर एंजॉयिंग इट। मेरे को कुछ क्वेश्चंस भी आपको देना है, लेकिन आज टाइम नहीं है। हम ऐसा बहुत स्लो स्लो जाएंगे, हमको भागने का नहीं है, धीरे धीरे लेगा। मैं क्वेश्चंस देने के लिए आपको कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस आपको सोल्व करना, ऐसा करके हम लोग एंजॉय करेगा। ओके, okay, then if you are finding any difficulty with me, please feel free to contact me, to talk with me. Okay, just consider I am one of your parent or one of your friend, as a senior friend, ऐसा सोच के मुझे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 9 to 10:30 में एक चैट देखा मैं, उसका मैं जा रहे। लास्ट टाइम मेरे को स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मेरे को देने का था, लेकिन उन्होंने कुछ बाद में उन्होंने डाला नहीं है। अभी एक चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, मैंने देखा नहीं, वो भाग गया उधर से, क्योंकि बहुत लोग डाल रहे हैं ना मैसेज। फ्रॉम 9 to 11 o'clock in morning I don't have phone with me, sir, that is why. Okay, no problem, I will give you the video. अगर एक भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो आपको वीडियो मिलेगा ना, वो वीडियो से आपको वो देखने को मिलेगा। मैं आपको हमेशा वीडियो देते रहता है। सो कुछ प्राइवेसी इश्यू का कुछ मैटर मेरे को नहीं है, मैं वीडियो आपको दूंगा, और वीडियो से अगर लेक्चर मिस हो गया तो आपको वीडियो से स्टडी करने को मिल जाएगा। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके देन, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।